24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 11 of English Grade 4. The unit title is The Network of Networks. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to recognize and practice that ED has three sounds, that is D, T, and ID. Use appropriate expressions in conversation and respond to instructions. Recognize that an adverb qualifies verbs, adjectives, and other adverbs. Identify and use simple adverbs of manner and time. Recognize the sentence structure. Write simple, descriptive, and narrative paragraphs. Write the acceptance to the invitation. Demonstrate the use of conventions of letter writing and write a simple letter. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students what they understand by global village. ये मैंने पहले सवाल के तौर पर ऑनरेबल टीचर इसलिए रखा है कि ग्लोबल विलेज की टर्म अब बहुत आम है और ये चूँकि क्लास 4 के बच्चे हैं, आई एम श्योर ये भी वीडियोस देखते हुए या अपनी पढ़ाई करते हुए, किताबें पढ़ते हुए इस लफ्ज़ से आशना हैं यकीनन कि ये दुनिया अब तो ग्लोबल विलेज हो गई है। और ब्रैकेट में इसके मानी मैंने लिख दिए कि द होल वर्ल्ड लुक्ड एट एज अ सिंगल कम्युनिटी। लेकिन अगर ज़रूरत महसूस आप करें तो आप बता सकते हैं उनको कि इसको ग्लोबल तो हो गया, यानी पूरी दुनिया या आदमी। विलेज क्यों कहा जाता है? विलेज ऑनरेबल टीचर आपको मालूम होगा यकीनन, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए कि आप बच्चों को बताएं विलेज की खुसूसियत क्या है, एक गांव या देहात में होता क्या है कि छोटा सा देहात है, चंद 100 या 1-1,500 लोग हैं, 2,000 हैं, तो इतनी एक उनमें राबता होता है। हर शख्स गांव का हर दूसरे शख्स को जानता होता है, उससे वाकिफ होता है। अब दुनिया भी चूंकि इंटरनेट से जुड़ी हुई है और राबते सेकंड्स में, यहाँ बैठा कोई बंदा कनाडा में बैठे हुए बंदे से फौरी चंद सेकंड में राब्ता कर लेता है और ये राब्ते बहुत वसी हैं, इसलिए दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। Ask them about the one word used for the worldwide electronic communication system, Internet, Sabakif. Tell the students that the next chapter is on the network of networks, that is the Internet. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. The network of networks. The Internet is an informal term for the worldwide communication networks of computers.
The internet is used to send information quickly between computers around the world. In other words, the internet is a network of networks. Internet is used by billions of people worldwide. Countless people helped develop it, but the person most often credited with its invention is the computer scientist Lawrence Roberts. The internet is used for many things, such as electronic mail, online chat, file transfer, and the interlinked web pages and other documents of the World Wide Web. The most used service on the internet is the World Wide Web, which is also called the web. The www or the web is the part of the internet that contains websites and web pages. It was invented in 1989 by Tim Berners-Lee. The software to see the World Wide Web is called a web browser. One also needs a connection to the internet. The second biggest use of the internet is to send and receive email. Email is private and goes from one user to another. Instant messaging is similar to email but allows two or more people to chat with each other much faster. Social networking websites such as Facebook and Twitter have become popular over the last few years. People now spend a large amount of their time online, keeping in touch with each other through these websites. One of the best and most common ways of finding information on the web is through the use of search engines such as Google and Bing. Google is currently the most popular search engine, receiving hundreds of millions of queries every day. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Wide, wide पढ़ दिया जाता है. The word is wide. और इसमें फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा ऑनरेबल टीचर कि मैंने किसी ट्यूटोरियल में ये शायद एक से ज़्यादा मर्तबा W और V की साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करके बताया था आपको कि W को कैसे बोलना है और V को कैसे बोलना है, और बाकायदा मैंने होंठों का जो एक्शन है, होंठों की जो हरकत है, वो उसकी मिसाल देकर बताया था. So when you speak this word wide, तो फिर W की तरह ही इसको, जैसे आप होंठों को थोड़ा सा आगे करके उनमें हल्का सा गैप रखकर गोल कर कर आप लफ्ज़ इसको हर्फ W को बोलेंगे, and it will be pronounced as wide, wide. Communication, इसका भी जिक्र हो चुका है इससे पहले, लेकिन फिर मैं जोर दूंगा कि कम्युनिकेशन नहीं कहना, कम्युनिकेशन नहीं कहना, कम्युनिकेशन, और इस पे जो स्ट्रेस है वो केशन की सी पर है. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बाज़ का लोग कुछ कह जाते हैं इसको, इंफॉर्मेशन, और इसका स्ट्रेस जो है वो एम पर है. Between,
बिटवीन नहीं कहना, बिटवीन, वीन की जो साउंड है वो लंबी करके पढ़नी है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, मन साउंड फिर आ गई और CUQ साउंड बोलनी है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, स्ट्रेस डी पर है। इंजन, इंजन, चूंकि हम इंजन कहते हैं उर्दू में, लोग फिर अंग्रेजी पढ़ते हुए बात बात इंजन कह जाते हैं। इंजन। क्वेरीज, ये इसका जो ओरिजिनल वर्ड है दैट इज क्वेरी। हाँ, इसमें एक मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, ऑनरेबल टीचर, बच्चों को ज़रूर बताइएगा। ये लफ्ज़ अक्सर सुना गया है, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, वो शायद इसके स्पेलिंग्स पर गौर नहीं करते, वो इसको क्यूरी पढ़ जाते हैं। अक्सर लोग कोई क्यूरी हो तो बताइएगा। उनको शायद दिल नहीं कि क्यूरी एक और लफ्ज़ है, वो एक बहुत मशहूर शख्सियत है, मैडम क्यूरी, लेकिन ये लफ्ज़ क्वेरी है, क्वेरी, क्वेरीज। यूज, इससे पहले बता चुका हूं तफसील के साथ कि वर्ब है तो यूज होगा, नाउन है तो यूज होगा। Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 117 and SLO is number 2. Mother. Assalamu alaikum. How are you? Teacher. I'm fine, thank you. But the son is complaining about headache. Moreover, he is unable to see the board from a distance. Mother. You're right. I took him to the eye specialist last night and he suggested glasses. Teacher. Oh, what about his routine at home? How much time is he's giving to computer screen? Mother. He's almost addicted to it. Please tell me how I can minimize harmful effects of digital screen. Teacher. Please make sure that your child is using larger screen. Mother. Okay, and I should also reduce brightness and increase font size. Teacher. And don't forget to minimize the screen time. Just allow him 30 to 40 minutes a day and then he should do some exercise. Mother. Thank you, Mrs. Khan. That's quite an informative conversation. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Term. A word or phrase. उर्दू में टर्म को इस्तिलाह कहते हैं। टर्म भी एक वर्ड ही होता है, मगर ये एक खास वर्ड होता है जिसको हम टर्म कहते हैं, यानी इस्तिलाह कहते हैं। अब देखिए, साइंस है तो एक वर्ड, बट एज अ टर्म फिर इसको खास मानों में लिया जाएगा। कम्युनिकेशन, राबिता, इब्लाग, बातचीत। कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई बातचीत या पैगाम रसानी, जो भी आप इसको कह लें, जिसकी समझ आ जाए सुनने या पढ़ने वाले को। अगर समझ नहीं आई तो फिर वो कम्युनिकेशन, इसका मतलब है, नहीं हुई। बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियंस। उर्दू में हम इसको अरब कहते हैं। काउंटलेस, अनगिनत।
बेशुमार, बेशुमार भी और अनगिनत भी, दोनों लफ्ज़ों में, अनगिनत में अन और बेशुमार में बेशुमार बग, यानी जिसकी आप गिनती न कर सकें, जिनको आप शुमार न कर सकें। मकसद कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा। टू क्रेडिट, टू बिलीव और से that somebody is responsible for doing something good. आप बच्चों को अगर इस लफ्ज़ की वजाहत करना चाहें तो कह सकते हैं कि हम आम गुफ्तगू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू गुफ्तगू में भी हम ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये जो टीम की इस गेम में कामयाबी है, इसका ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है। तो ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है। ब्राउज, टू लुक फॉर और टू लुक एट इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर, स्पेशली ऑन द इंटरनेट। ब्राउज करते हैं, आप ढूंढते हैं। इंस्टेंट, फौरी, करंटली, आजकल। क्वेरीज, जिसका पहले भी मैंने बताया कि इसका सिंगुलर क्वेरी है। अ क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग अ डाउट, यानी आपको शक है कि ये इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी तो आपने कहा जी कि एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेरी। Let's come to grammar now. And its adverbs. Adverbs, फिर वही बात के हम चूंकि ये बुक में दिया होता है और बच्चों ने इसको बहरहाल पढ़ना होता है, तो मैं इसको जहाँ जहाँ ज़रूरी ख्याल करता हूँ मैं इसको शामिल कर लेता हूँ अपने ट्यूटोरियल में। तो आप पहले तो ज़ाहिर है डिफाइन करेंगे कि एडवर्ब है क्या। एडवर्ब्स आर यूज्ड, ये रिमेंबर के नीचे जो नोट है, एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स। अब नीचे फिर इसकी मिसालें दी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंगली हम जब ये लफ्ज़ बोलते हैं एडवर्ब्स, तो आप ज़रा इनमें दोनों हिस्सों को अलग अलग करके देखें। वर्ब्स को अलग कर दें और एड को अलग कर दें, तो थोड़ा सा समझ आता है कि इट एड्स समथिंग टू द वर्ब। एड वर्ब, दे टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंड। अब इसकी बहुत सारी मिसालें बुक में दी हुई हैं। पेज 120 पे आप ज़रा, आपके पास बुक है, पेज 120, आई एम श्योर आपने खोला हुआ है, नहीं तो खोल लें। ये इसकी मिसालें पहले पढ़ लेते हैं। दे टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंड, दे टेल वेयर समथिंग हैपेंड, दे टेल हाउ समथिंग हैपेंड, एंड देन व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन तीनों की फिर आगे सेंटेंस हैं। और व्हेन का सेंटेंस है yesterday I went to a party। अब ये yesterday एडवर्ब कैसे है और किस वर्ब के मानी को मॉडिफाई कर रहा है। went कब, ये टॉपिक था ना कि they tell us when something happened। where, my friend invited me there। अब इनवाइट वर्ब है, इसके मानों में कुछ ऐड कर रहा है, ये एडवर्ब, और एडवर्ब देयर है। और फिर हमने बात की हाउ की, दैट द एडवर्ब्स टेल हाउ समथिंग हैपेंड। आई वेंट क्विकली टू मीट हिम। मीट, सॉरी, वेंट है इसमें वर्ब,
और इसमें कोई मानी ऐड कर रहा है क्विकली, यानी मैं गया मगर तेजी के साथ। अब पेज 120 पे ये देखिए, जो रिमेंबर के लेफ्ट पे जो एक्टिविटी है, सर्कल द एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब द अंडरलाइन वर्ब्स। अब इसमें वर्ब्स को अंडरलाइन किया हुआ है, मैं एक दो आपको वैसे लेट्स गो थ्रू। आमना राइट्स नीटली इन हर नोटबुक। राइट्स वर्ब है, इसका एडवर्ब क्या हुआ, लिखती है आमना मगर साफ सुथरा। तो ये राइट्स के मानी में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए नीटली हो गया एडवर्ब। अली वॉक्स ब्रिस्कली, ब्रिस्कली हो गया एडवर्ब। लिसन अटेंटिवली, swims better, finished, completely, ice cream. The courier arrived early in the morning. Arrived verb है तो इसका adverb हो गया early. The adverbs का जिक्र चूंकि कोई भी टेक्स्ट पढ़ने में बार बार आता है और बच्चे लिखते हैं तब भी वो एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। सो ये एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको फॉर 1 में। लेट्स कम टू राइटिंग नाउ। इट्स पेज 121. SLO is number 4. It's quite interesting. Describing a kitten's play with the help of adverbs. अब ये ग्रामर बेस्ड एक्टिविटी है। Tell the students the meanings of the given adverbs. ये आप हेल्प इस तरह जरूर किया करें। कहीं कहीं जब भी आप देखें कि कोई राइटिंग एक्टिविटी है बच्चों के लिए और उसमें वर्ड बैंक भी दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर बच्चों को उनमें उन वर्ड्स के या उनमें से चंद एक वर्ड्स के मानी ही नहीं आते तो वो उनको यूज कैसे करेंगे। सो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ईगरली, जेंटली, जॉयफुली, लेजिली, स्लोली, टिमिडली, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक लफ्ज़ को आपके लिए एक्सप्लेन करूं। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, लेकिन कहीं आपको मुश्किल पेश आए तो आई एम श्योर आपके इस वक्त भी एक तरफ बुक होगी, हाथ में मोबाइल होगा और दूसरी तरफ आपके डिक्शनरी होगी। तो जब भी आप ज़रूरत महसूस करें तो इन वर्ड्स के मानी आप डिक्शनरी में ज़रूर देख लीजिएगा। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जब डिक्शनरी खोलेंगे, जो चीज़ मालूम करने के लिए आप डिक्शनरी खोलेंगे वो तो आप मालूम कर ही लेंगे, लेकिन किताब है आपके सामने पड़ी है तो नेचुरली आपकी नज़र ऊपर नीचे भी जाएगी और आप ज़रूर कुछ और शेड्स भी देख लेंगे। हो सकता है कोई और वर्ड भी देख लें, और जो वर्ड देखने के लिए आपने डिक्शनरी खोली है उनके कुछ और मानी भी देख लेंगे, उनका कोई यूजेज भी देख लेंगे। ये फ़ायदा होता है डिक्शनरी बार बार खोलने का कि आप ज़रूरत के तहत एक चीज़ देखना चाह रहे हैं मगर आप इत्तेफाक से, चूँकि आपने डिक्शनरी खोल ली है, लिहाजा कुछ और चीज़ें भी आपको मालूम हो जाएंगी। आपने मीनिंग्स बता दिए बच्चों को इन वर्ड्स के, तो उसके बाद आप एक सैम्पल सेंटेंस भी उनको लिख के दे देंगे। टेल देम टू यूज देयर इमेजिनेशन टू थिंक ऑफ द किटन्स एक्शंस। अब देखें ना, बिल्ली खेल रही है, तो इसीलिए इस तरह की राइटिंग को हम क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं, जहां बच्चों को अपने इमेजिनेशन से काम लेना पड़े। Tell them to describe the kitten's play in simple present tense, present indefinite जिसको हम कहते हैं,
कि वो ये करती है, वो करती है, वो करती है। एंड देन जब वो बच्चे लिख लें, अपना काम कर लें, तो फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा इन ड्यू कोर्स। Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.